Before going to the procedures of audit, we need to understand certain terms associated with audit. So, audit is an evidence gathering process. Audit evidence is used to evaluate how well audit criteria are being met. Audits must be objective, impartial, and independent, and the audit process must be both systematic and documented. There are three types of audits: first party, second party, and third party audit. And first party audits are internal audits, second and third party audits are external audit. First party audit is usually conducted by the organizations itself, but the person involved in the internal audit shall not go for auditing their own work. Okay. Then second party audits, which is also called external audits, and it is usually done by the customers or the person representative of the customers. And the third party audits are external as well. However, they are performed by independent organizations such as registrars, certification bodies, or regulators themselves. And one more important word is combined audit or joint audit. When two or more management systems of different disciplines are audited together at the same time, it is called a combined audit. And when two or more auditing organizations cooperate to audit a single audit organizations, that is called joint audit. 2011 should be used by those who carry out first and second party audit, and ISO IEC 17021 2011 should be used by those who carry out third party audits. Next term is auditee. An auditee is an organization or part of an organization that is being audited. Organizations can include companies, corporates, and enterprises, firms, charity associations, and institutions. Organizations can be either incorporated or unincorporated and can be privately or publicly owned. Then auditor. An auditor is a person who carry out audits. Auditors collect evidence in order to evaluate how well audit criteria is or are being made. They must be objective, impartial, independent, and last competent. Okay. Then audit client. An audit client is any person or organization that requests an audit. जो भी ऑडिट के लिए रिक्वेस्ट करता है वो ऑडिट क्लाइंट बन जाता है कि हाँ एक पर्सन बोल दिया कि इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑडिट करना चाहिए, तो उस टाइम वो पर्सन ऑडिट क्लाइंट बोला जाएगा. तो इंटरनल ऑडिट क्लाइंट्स कैन बी आइदर द ऑडिटी और ऑडिट प्रोग्राम मैनेजर, whereas external audit clients can include regulator or customers or any other parties that have a legal or contractual right or obligation to carry out an audit. Then risk. According to ISO Guide 73, risk is the effect of uncertainty on objectives, and an effect is a positive or negative deviation from what is expected, what is required. So risk is the chance that there will be a positive or negative deviation from the objective you hope to achieve. Then audit criteria. Audit criteria include policies, procedures, and requirements. Audit evidence is used to determine how well audit criteria are being made. Audit evidence is used to determine how well policies are being implemented, how well procedures are being applied, and how well requirements are being followed. So all these are audit criteria. When requirements are used as audit criteria, auditors often use the term conformity and non-conformity to indicate whether or not requirements are being met.
However, when legal requirements are used as audit criteria, auditors tend to use the terms compliance and non-compliance instead of non-conformity and non-conformity. Then audit evidence. Audit evidence includes records, factual statements, and other verifiable information that is related to the audit criteria being used. Audit criteria includes policies, procedures, and requirements. Audit evidence can be either qualitative or quantitative. Objective evidence is information that shows or proves that something exists or is true. Then audit findings. Audit findings are results from a process that evaluates audit evidence and compares it against audit criteria. So all these are findings, results, and comparisons with audit criteria. Audit findings can show that audit criteria are being met, that is conformity, or that they are not being met, or non-conformity. They can also identify best practices or improvement opportunities. Audit evidence includes records, factual statements. Okay. Then audit plan. Audit plan specifies how you intend to conduct a particular audit. It depends upon you how you are planning, which date, what are the procedures, how you will conduct the audit based upon your available system procedures, all these things, and it describes the activities you intend to carry out in order to achieve your audit objectives. An audit is an evidence gathering process. Audit evidence is used to evaluate how well audit criteria are being met. Audit scope. The scope of an audit is a statement that specifies the focus, extent, and boundary of a particular audit. The scope can be specified by defining the physical location of the audit, the organizational units that will be examined, the process and activities that will be included, and a time period that will be covered. So audit scope is basically the boundaries of the audit, okay, in which you have to do the audit process. Okay, इन दिस वीडियो ऑडिटिंग के बारे में जब जानेंगे कैसे होता है ऑडिट, कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, ऑल दिस थिंग्स. सो फर्स्ट हम क्या समझेंगे, जो डिफरेंट स्टेप है उसको हम समझेंगे. सो इनिशिएटिंग ऑडिट, ऑडिट कैसे स्टार्ट होता है, अपॉइंटिंग द ऑडिट टीम लीडर, देन डिफाइनिंग ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप एंड क्राइटेरिया, determine the feasibility of the audit, selecting the audit team based upon their competency, then establishing initial contact with the auditee. ओके, ऑडिटी कौन है ना, जो कि ऑडिट में हिस्सा लेते हैं, जो कि ऑडिटी होता है, जिनको कि ऑडिटर क्वेश्चन पूछते हैं, उनको हम ऑडिटी बोलते हैं. सो इनमें दो पार्ट है, एक ऑडिटर है और एक ऑडिटी है. ये दो तरह के पीपल इन्वॉल्व होते हैं. देन क्या है ना, कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू. So, reviewing relevant management systems documents, including records, and determining their adequacy with respect to audit criteria. So, document review होना है. Then, preparation for the on-site audit activities. जो ऑडिट एक्टिविटीज़, ऑन साइट ऑडिट एक्टिविटीज़ होना है, उससे पहले क्या क्या प्रिपरेशन होना है. देखिए, प्रिपेयरिंग द ऑडिट प्लान है, then assigning work to the audit team, preparing work documents, then हम कर सकते हैं कि ना कंडक्टिंग ऑन साइट ऑडिट एक्टिविटीज. उसके बाद हम कर सकते हैं, पहले हम प्रिपेयरिंग फॉर द ऑन साइट ऑडिट एक्टिविटीज़ किया, उसके बाद हम कंडक्ट करेंगे ऑन साइट ऑडिट एक्टिविटीज़. कंडक्टिंग ओपनिंग मीटिंग, ये इसमें क्या होता है ना, पहले कुछ डिस्कशन ऐसा होता है, कंडक्टिंग ओपनिंग मीटिंग. देन कम्युनिकेटिंग ड्यूरिंग द ऑडिट, कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे. देन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गाइड्स एंड ऑब्जर्वर्स, जो मैनेजमेंट सिस्टम में जो गाइड्स होते हैं और ऑब्जर्वर्स, उनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट के टाइम में. देन जनरेटिंग ऑडिट फाइंडिंग्स, क्या क्या ऑडिट होने के बाद क्या क्या मिला हमको रिजल्ट्स. देन प्रिपरेशन
ऑडिट कंक्लूजन्स, हाउ यू कैन प्रिपेयर प्रॉपर डॉक्यूमेंट के हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करना है। देन कंडक्टिंग क्लोजिंग मीटिंग, उसके बाद क्लोजिंग मीटिंग होता है। देन प्रिपेयरिंग, अप्रूविंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, उसके बाद प्रिपेयर करना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट को, उसको अप्रूव करना पड़ेगा और उसके बाद उस रिपोर्ट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। देन कंप्लीटिंग द ऑडिट, उसके बाद कंप्लीटिंग होता है क्या, ऑडिट का। कंडक्टिंग ऑडिट फॉलोअप, ऑडिट फॉलोअप इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑडिट बट स्टिल वी विल डिस्कस लिटिल बिट अबाउट इट। So audit is having three parts. One is before the audit what should be done, during audit what should be done, and after the audit what has to be done. So तीन भाग में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, so appointing the audit team leader, those assigned for the responsibility for managing the audit program should appoint the audit team leader for the specific audit. और अगर joint audit हो रहा है, in that case what you have to do, as per the agreement you have to select the audit team leader, because in joint audit what happens, there are two different audit team. So based upon the organization's agreement with the auditors, we can decide the auditor or audit team leader. Then defining audit objective, scope and criteria. So within the overall objective of an audit program, an individual audit should be based on documented objective, scope and criteria. So audit क्या होता है ना, ये ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड क्राइटेरिया के अंदर ही आना चाहिए. सो डिटरमाइनिंग of the extent of conformity of the auditor's management system or parts of it with the audit criteria. Then evaluation of the capability of the management systems to ensure compliance with the statutory, regulatory and contractual requirements. Then one more objective is evaluation of the effectiveness of the management system in meeting its specified objectives and identification of areas for potential improvements of the management systems. Then the audit scope describes the extent and boundaries of the audit, such as physical locations, organizational units, activities and processes to be audited, as well as the time period covered by the audit. The audit criteria are used as a reference against which conformity is determined and may include applicable policies, procedures, standards, laws and regulations, management system requirements, contractual requirements or industry or business sector codes of conduct. सो ऑडिट ऑब्जेक्टिव में हम समझेंगे कि द ऑर्गेनाइजेशन विच इज टू बी ऑडिटेड, जो ऑर्गेनाइजेशन को हम ऑडिट करने वाले हैं उसका कैपेबिलिटी कितना है, कन्फर्मिटी लेवल कितना वो ला सकता है, वो सब ऑब्जेक्टिव में आएगा. ओके, और जो भी पोटेंशियल इम्प्रूवमेंट एरिया है, जो भी एरिया को हम इम्प्रूव कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सब ऑब्जेक्टिव में हम डिस्कस कर सकते हैं. और क्या ना, स्कोप ऑडिट स्कोप में क्या आता है ना, जो फिजिकल कंडीशन, फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ द ऑडिट और द टाइम पीरियड टू बी रिक्वायर्ड फॉर ऑडिटिंग, कितना टाइम में ऑडिट हो सकता है, वो सब स्कोप में आएगा. और ऑडिट क्राइटेरिया क्या होता है ना, जो रेफरेंस होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसमें कि हमारा पॉलिसी आता है और प्रोसीजर्स आता है, स्टैंडर्ड्स भी को हम रेफरेंस ले सकते हैं. जो भी रेफरेंस हम लेंगे ऑडिट के लिए, वो सब क्या होता है ना, ऑडिट क्राइटेरिया में आता है. उसके बाद क्या ना, डिटरमाइनिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द ऑडिट, उसमें क्या आता है ना, कितना टाइम और कितना रिसोर्स
एडिक्वेटली हमारे पास अवेलेबल है, उसके बदले में हम वो ऑडिट को रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं, उसका संभव और प्रैक्टिकली वो हम कर सकते हैं। और क्या ना, कोऑपरेशन कितना ऑडिटी में कितना कोऑपरेशन है, वो कितना कोऑपरेशन कर पाएगा ऑडिट को, और क्या है ना, क्या क्या सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन दे सकता है ऑडिट के लिए। उसके बाद ही हम कह सकेंगे कि ऑडिट फिजिबिलिटी है। ओके, उसके बाद ना, सिलेक्टिंग द ऑडिट टीम बेस्ड अपॉन द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, स्कोप, क्राइटेरिया एंड एस्टिमेटेड ड्यूरेशन ऑफ द ऑडिट, उसको बेस में लेकर जो भी हमारा स्कोप है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है, क्राइटेरिया है, उसको हम बेस करने के बाद ही कौन सा ऑडिट टीम उसके लिए कॉम्पिटेंट है, कौन सा ऑडिट सिस्टम, कौन सा ऑडिट एजेंसी इज़ कॉम्पिटेंट, और कॉम्पिटेंट मतलब कैपेबल है उस ऑडिट को कैरी आउट करने के लिए, उस ऑडिट को वो ट्रांजैक्ट करने के लिए वो ऑडिट टीम कॉम्पिटेंट है कि नहीं, उसके बेस में हम उसको सिलेक्ट करेंगे। और वेदर द ऑडिट इज़ गोइंग टू बी ए जॉइंट ऑडिट और ए कंबाइंड ऑडिट, अगर आपका ऑब्जेक्टिव और स्टैंडर्ड रेफरेंस बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बेसिस पे आप अगर जॉइंट ऑडिट के लिए जा सकते हैं, कंबाइंड ऑडिट के लिए जा सकते हैं। अगर आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किए हैं, देन यू हैव टू गो फॉर जॉइंट ऑडिट और कंबाइंड ऑडिट। और अगर वो आपका ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा सिस्टम नहीं है, देन you can select based upon that capability and the overall competence of the audit team needed to achieve the objective of the audit. Then statutory, regulatory and contractual and accreditation certification requirements एज एप्लीकेबल, जो भी लेजिस्लेशन है, जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो कि लाइसेंस दिया है, उसके बेसिस के ऊपर स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एंड एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशंस रिक्वायरमेंट्स है, उसके बेसिस पे आप ऑडिट टीम को सिलेक्ट करेंगे। कौन सा ऑडिटर वो सब कर पाएगा, उसके बाद ही आप सिलेक्ट कर पाएंगे कि दिस ऑडिट टीम इज़ एलिजिबल टू गो फॉर दिस ऑडिट process. Then the need to ensure the independence of the audit team from the activities to be audited and to avoid any conflict of interest. ये भी एक important point है। जो भी ऑडिट टीम को आप सिलेक्ट करेंगे, ही शुड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब वो उसका कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रहेगा, वो पर्सनल कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा उस कंपनी के अंदर। अगर वो पर्सनल इंटरेस्ट होगा तो बायस हो जाएगा ऑडिट। तो इसीलिए क्या ना, द नीड टू एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिट टीम का इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। Then the ability of the audit team members to interact effectively with the auditee and to work together. देखिए, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर ऑडिटी के साथ ऑडिटर अच्छे से बात नहीं कर पाएगा तो क्या होगा ना, प्रॉपर ऑडिट नहीं हो पाएगा। तो उसी के बेसिस के आप ऊपर ही आप ऑडिट टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन द लैंग्वेज ऑफ द ऑडिट एंड अंडरस्टैंडिंग अभी हम डिस्कस किए। देन क्या होता है ना, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू। उसके अंदर क्या था ना, प्रायर टू ऑन साइट ऑडिट एक्टिविटीज द ऑडिटीज डॉक्यूमेंटेशन शुड बी रिव्यूड टू डिटरमाइन द कन्फर्मिटी ऑफ द सिस्टम। जो भी डॉक्यूमेंट है उसको चेक करना होता है ऑडिटर को, और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसीजर चल रहा है कि नहीं, वो कन्फर्मिटी लेना पड़ता है एज डॉक्यूमेंटेड विद द ऑडिट क्राइटेरिया। जो भी ऑडिट क्राइटेरिया है उसके हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन है कि नहीं ऑडिटर के पास, और उस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर एक्टिविटीज़ हो रहा है कि नहीं, वो सबको चेक करना होता है। उसको हम बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट रिव्यू। इन सम सिचुएशंस दिस रिव्यू में बी डिफर अंटिल द ऑन साइट एक्टिविटीज़ कमेंट्स। कभी कभी क्या होता है ना, ऑन साइट एक्टिविटीज़ को चेक करने से पहले वो डॉक्यूमेंटेशन में कुछ वेरिएशन रहता है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आप ऑडिट क्लाइंट के साथ थोड़ा सा बातचीत करने के बाद ही आप ऑडिट स्टार्ट कर सकते हैं। देन प्रिपेयरिंग फॉर द ऑन साइट ऑडिट एक्टिविटीज़। डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू हो गया, उसके बाद क्या करना है ना, ऑडिट टीम
लीडर एक ऑडिट प्लान बनाता है, उसके बेसिस पे जो भी प्लान बना है उसको ऑडिट क्लाइंट और ऑडिट टीम और ऑडिटी वो सबको उस प्लान को समझाना पड़ता है। ओके, दिस ऑडिट प्लान क्या क्या होता है उसमें ना, उस ऑडिट प्लान दिस consist of what? The audit objectives, then audit criteria and reference documents, audit scope including identification of the organizational and functional units and processes to be audited, then the dates and places where the on-site audit activities to be conducted, then the expected time and duration of on-site audit activities including meeting with the auditees, management and audit team, मीटिंग कब ओपनिंग मीटिंग होगा, कब क्लोजिंग मीटिंग होगा, कब कितना टाइम लगेगा, कितना मेन डेज बोलते हैं उसको, कितना मेन डेज है, उसके बेसिस के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका उस टाइम में आपका ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल है कि नहीं। उसके बाद ही हम वो सब प्लान कर सकते हैं। देन the role and responsibility of the audit team members and accompanying persons, क्या क्या रोल होता है जो कि ऑडिटर को accompany देंगे, उनका क्या रोल होता है और टीम मेंबर का क्या काम है। द एलोकेशन ऑफ appropriate resources to critical areas of the audit plan should also cover the following as appropriate: identification of the auditee's representative for the audit, जो भी उनका रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ऑडिटी का उनको भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देन द वर्किंग एंड रिपोर्टिंग लैंग्वेज, कौन सा भाषा में हम रिपोर्टिंग करेंगे और ऑडिट करेंगे। द ऑडिट रिपोर्ट टॉपिक्स, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या पॉइंट्स है, वो सब भी डिस्कस करते हैं। लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स, कौन ऑडिटर जब आएगा वो कहाँ पे रहेगा, उसका फैसिलिटी क्या क्या रहेगा, उसका उस सबको ऑडिटी को अरेंज करना पड़ता है। देन मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्फिडेंशियलिटी, कौन कौन सा मैटर आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, पब्लिक नहीं करना चाहते हैं, वो सब भी आप वो ऑडिट प्लान में डिस्कस कर सकते हैं, रख सकते हैं। देन एनी ऑडिट फॉलो अप एक्शंस, कोई भी ऑडिट फॉलो अप एक्शंस है उसको भी आप प्लान में रख सकते हैं। देन असाइनिंग वर्क टू ऑडिट टीम, जो भी ऑडिट टीम लीडर होगा वो ऑडिट टीम को बेस्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया स्कोप उसके हिसाब से वो काम डिटरमाइन करेंगे। देखिए देन आता है क्या ना, प्रिपेयरिंग वर्क डॉक्यूमेंट, जो भी ऑडिट टीम मेंबर होते हैं वो सब जो भी प्रोसीडिंग हो रहा है, ऑडिट का प्रोसेस कैसे चल रहा है उसका वो रिकॉर्डिंग बनाते हैं, आइदर इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट और सैम्पलिंग प्लान्स और सपोर्टिंग एविडेंस, उसके बेसिस के जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं ऑडिट एविडेंस। कंडक्टिंग ऑन साइट एक्टिविटीज़, हम इससे पहले समझे कि ऑडिट्स होने से पहले क्या क्या करना होता है। अभी क्या होना, ऑडिट अभी स्टार्ट होने वाला है, उस समय आपको क्या करना है, पहले आपको करना है ना क्या ना, कंडक्टिंग द ओपनिंग मीटिंग, उसमें आप ऑडिट प्लान के बारे में बोलेंगे और आप एक शॉर्ट समरी देंगे हाउ ऑडिट एक्टिविटीज़ विल बी अंडरटेकन। उसके बाद टू कंफर्म कम्युनिकेशन चैनल्स टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑडिटी टू आस्क क्वेश्चंस, आप ओपनिंग मीटिंग करने के बाद आप ऑडिटी को बोल सकते हैं आपका कौन सा डाउट है, उस कौन सा क्वेश्चन है वो सब आप बोल सकते हैं। देन कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द ऑडिट, अगर आप का जो ऑडिट है बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा ऑडिट होने वाला है, देन ऑडिट टीम मेंबर्स के बीच में कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे, क्या ऑडिट क्लाइंट के साथ और ऑडिटी के साथ उसका अरेंजमेंट करना होता है, कैसे वो कम्युनिकेट करेंगे, दिस पॉइंट दैट पॉइंट हैज़ बीन फाउंड। अगर वो ऑडिट क्राइटेरिया और ऑडिट स्कोप से बाहर कुछ पॉइंट निकल रहा है तो उसको ऑडिट टीम लीडर को बोलना होता है, वो सब आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है, कैसे ना, विद द हेल्प ऑफ द अरेंजमेंट गिवन बाय द ऑडिटी। ओके, और एल्स एज पर द एग्रीमेंट यू कैन गो फॉर द कम्युनिकेशन इन बिटवीन ईच अदर। देन रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गाइड्स एंड ऑब्जर्वर्स, जो भी ऑडिटी के द्वारा गाइड्स और ऑब्जर्वर्स दिया जाता है, किनको ना, ऑडिटर्स को और ऑडिट टीम लीडर्स को और ऑडिट टीम मेंबर्स को, तो उनका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो असिस्ट करें, ना कि कुछ इन्फ्लुएंस करें कि ऐसा कुछ
ब्राइब देना, कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करना चाहिए किसको ना, ऑडिट ऑब्जर्वर्स और गाइड्स को। और उसके बाद क्या है ना, कलेक्टिंग एंड वेरीफाइंग इंफॉर्मेशन। ड्यूरिंग द ऑडिट इंफॉर्मेशन शुड बी कलेक्टेड बाय एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग एंड शुड बी वेरीफाइड। ओनली इंफॉर्मेशन दैट इज वेरीफाइबल मे बी ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस शुड बी रिकॉर्डेड। जो भी ऑडिट एविडेंस निकल रहा है उसको आप रिकॉर्ड करना है। देन जनरेटिंग ऑडिट फाइंडिंग। ऑडिट एविडेंस शुड बी इवैल्यूएटेड अगेंस्ट द ऑडिट क्राइटेरिया टू जनरेट द ऑडिट फाइंडिंग्स। जो भी आपका ऑडिट क्राइटेरिया, जो भी आप प्लान में मेंशन किया है और जो भी फाइंडिंग्स निकल रहा है वो सब को आप प्रॉपरली जनरेट करना पड़ेगा। अगर वो ऑडिट फाइंडिंग्स ऑडिट क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है तब भी आपको उसको रिकॉर्ड में लाना पड़ेगा, जनरेट करना पड़ेगा। ऑडिट फाइंडिंग को हम आइदर कन्फर्मिटी और नॉन कन्फर्मिटी में क्राइटेरिया में ला सकते हैं। व्हेन स्पेसिफाइड बाय द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स, ऑडिट फाइंडिंग्स कैन आइडेंटिफाई एन अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑल्सो। जो भी अभी ऑडिट फाइंडिंग्स आप निकल रहा है वो इम्प्रूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प कर सकता है। जो भी ऑडिट फाइंडिंग्स आ रहा है, कन्फर्मिटी और नॉन कन्फर्मिटी विद द ऑडिट क्राइटेरिया एंड द सपोर्टिंग ऑडिट एविडेंस शुड बी रिकॉर्डेड। जो भी ऑडिट फाइंडिंग्स आ रहा है उसको अब रिकॉर्ड करना है। देन क्या ना, नॉन कन्फर्मिटीज़ एनसी जो बोलते हैं मे बी ग्रेडेड। एनसी जो आ रहा है, नॉन कन्फर्मिटीज़ जो आ रहा है उसको आप ग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि मेजर एनसी बोल सकते हैं, माइनर एनसी बोल सकते हैं। और आप उसको क्या बोलते हैं ना, एक पॉइंट्स जो कि आप माइनर, वेरी माइनर बोल सकते हैं उसको, कि सजेशन के हिसाब से भी आप देन दे शुड बी रिव्यूड विद द ऑडिटी टू ऑब्टेन नॉलेज दैट द ऑडिट एविडेंस इज एक्यूरेट एंड द नॉन कन्फर्मिटीज आर अंडरस्टूड। जो भी एनसी निकल रहा है, जो भी ऑडिट फाइंडिंग्स निकल रहा है वो सब ऑडिटी के साथ एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और वो नॉन कन्फर्मिटीज शुड बी अंडरस्टूड। नॉन कन्फर्मिटी जो आ रहा है उसको ऑडिटी अच्छे से समझ पा रहा है कि नहीं, वो सब भी कंफर्म ले सकते हैं। देन प्रिपेयरिंग ऑडिट कंक्लूजन्स। द ऑडिट टीम शुड कन्फर्म प्रायर टू द क्लोजिंग मीटिंग से पहले ऑडिट कंक्लूजन को कन्फर्म करना पड़ेगा। टू रिव्यू द ऑडिट फाइंडिंग्स एंड any other appropriate information collected during the audit against the audit objective, to agree on the audit conclusions taking into account the uncertainty inherent in the audit process। कुछ uncertainty हो गया है जो कि ऑडिट प्रोसेस में, उसको भी आप कंसिडर करना पड़ेगा। टू प्रिपेयर रिकमेंडेशंस इफ स्पेसिफाइड बाय द ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स एंड टू डिस्कस ऑडिट फॉलोअप इफ इंक्लूडेड इन द प्लान। उसके बाद क्या था ना, कंडक्टिंग द क्लोजिंग मीटिंग। जो भी ऑडिट टीम का लीडर होता है वो ऑडिटी के साथ एक क्लोजिंग मीटिंग ले सकता है। उसमें वो डिस्कस कर सकते हैं कि क्या क्या नॉन कन्फर्मिटीज आया है, क्या क्या ऑडिट फाइंडिंग्स आया है, उसको वो अच्छे तरह से ऑडिटी को समझा सकते हैं। और उसके बाद क्या क्या प्रिवेंटिव एक्शंस और करेक्टिव एक्शंस और करेक्शंस जो भी है वो सब कैसे आप कौन सा टाइम फ्रेम में आप ले सकते हैं, कर सकते हैं, वो सब आप ऑडिटी के साथ डिस्कस कर सकते हैं अगर वो ऑडिट प्लान और ऑडिट क्राइटेरिया में ऑलरेडी मेंशन किया है तो। देन प्रिपेयरिंग द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट टीम लीडर शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशंस एंड कंटेंट्स ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। उस ऑडिट रिपोर्ट में आप का जो ऑडिट ऑब्जेक्टिव रहा वो सब मेंशन कर सकते हैं। ऑडिट का स्कोप, पर्टिकुलरली आइडेंटिफिकेशन द ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल यूनिट्स। आपका जो ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑडिट क्लाइंट, आइडेंटिफिकेशन ऑडिट टीम एंड मेंबर्स। जो भी ऑडिट टीम का मेंबर्स होते हैं कि ऑडिट टीम लीडर्स का, उसके बारे में कुछ लिख सकते हैं। देन द डेट्स एंड प्लेसेस वेयर द ऑन साइट एक्टिविटीज वर कंडक्टेड। कौन सा एरिया को आप ऑडिट किए हैं वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। देन ऑडिट क्राइटेरिया, देन मोस्ट इम्पोर्टेंट द ऑडिट फाइंडिंग्स को आप मेंशन करते हैं। उसके बाद कुछ कंक्लूजन दे सकते हैं। कुछ कंक्लूजन में आप प्रिवेंटिव एक्शंस, कुछ करेक्टिव एक्शंस, ऐसा होना चाहिए, ऐसा इम्प्रूवमेंट्स है, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं।
देन अप्रूविंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द ऑडिट रिपोर्ट, जो भी ऑडिट रिपोर्ट आप बनाए हैं उसको आप पहले अप्रूव करना पड़ेगा और उसका टाइम फ्रेम, कितना टाइम के अंदर आप उस ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने में कुछ देरी आता है तो आप ऑडिट क्लाइंट के साथ बात कर सकते हैं, बट ऑडिट रिपोर्ट पहले सबमिट करने से पहले आपको उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिट प्रोग्राम प्रोसीजर। जो भी ऑडिट रिपोर्ट्स आप बना रहे हैं उसको पहले ऑडिट आप अप्रूव लेने के बाद ही आपको सबमिट करना पड़ता है। देन कंप्लीटिंग द ऑडिट इज कंप्लीटेड व्हेन ऑल एक्टिविटीज डिस्क्राइब्ड इन द ऑडिट प्लान हैव बीन carried out and the approved audit report has been distributed. With this we have understood many things about audit, how audit is carried out, what are the audit criteria, scope, plan, how audit has to be done, how the audit report is created, how the audit conclusion is being done, who are auditors, who are auditee, different examples. Thank you a lot.